Jesus' name we pray. Amen. Amen. This month the Lord has given us a theme that we are going to meditate, our testimony. इस महीने परमेश्वर ने जो हमें मुख्य विषय दिया है जिस पर हम मनन करते हैं हमारी गवाही के बारे में। Now, our testimony is very important. हमारी गवाही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। Our surrounding people are watching us. Surrounding people, they don't read Bible. They do not know Jesus, but they are looking at our life. They know we are Christian. हमारे आसपास के लोग हमें देखते हैं, वो लोग यीशु मसीह को नहीं पहचानते होंगे, वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन वो हमें देखते हैं। In Antioch, the people were called Christians because they had the nature, character, walk, talk of Jesus. अंत्योक के अंदर चेले लोगों को पहली बार उनको मसीह करके बुलाया गया क्योंकि वो लोग ने उनके अंदर यीशु मसीह के चरित्र को देखा, उनके जैसे स्वभाव को पाया। In our nation, we have to walk as a witness to everyone we meet or come across, my brothers and sisters. सबके मध्य में हमें चाहिए कि हम इस प्रकार की गवाही को लेकर के चलें। No, Job 16, this is what it says in verse 19. It's very beautiful, how Job and the Acts of the Apostle can go together. यहाँ पर हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं 16वें अध्याय में किस प्रकार से अय्यूब का और जो प्रेरितों का जो जीवन था किस प्रकार से साथ साथ चल रहा है। Come on, Job 16 verse 19 says, even now my witness is in heaven, my advocate is on high. 19वें पद में इस प्रकार से लिखा है, अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। My witness, when people came to Job, they said, you have committed so many sin, that's why you are suffering. He says, my witness is in heaven. जब लोग अय्यूब के पास आकर के उसके ऊपर दोष लगा रहे थे और कह रहे थे कि तूने बहुत सारे पाप किए हैं इसलिए सब विपत्ति तुझ पर आ पड़ी है, लेकिन अय्यूब कहता है कि मेरा गवाह तो ऊपर है, मेरा गवाह स्वर्ग में है। Even today, I want to tell you, I'm sorry to say, even many church, many pastor, many of us believe if a person is sick, it's because of the sin. If a person is suffering, it's because of the sin. और आज के दिनों में भी हम देखते हैं कई पास्टर और विश्वासी लोग इस प्रकार से अनुमान लगाते हैं, कहते हैं कि इस व्यक्ति ने पाप किए हैं इसलिए व्यक्ति दुख उठा रहा है, बीमार है। If somebody is very rich, very nice, they think that's the godliness. और यदि कोई बहुत ही धनवान है, बहुत ही अच्छी तरह से रह रहा है, तो लोग समझते हैं कि ये बहुत ही भक्ति में परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। You do not know really till we reach on that day. We will not know the reality till we reach on the day. हम लोग उस दिन जब परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे तब तक वास्तविकता को हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं मालूम कर पाएंगे। The devil came to Jesus and said, if you fall at my feet, I will give everything. यीशु मसीह के पास शैतान आकर के कह रहा है कि तू मेरे पैरों के पर गिर जा, मेरा दंडवत कर, मैं तुझे सारे बातों को दे दूंगा। So many children of God suffering, one of the reasons they did not fall at the feet of devil. बहुत सारे परमेश्वर के लोग इसलिए दुख उठा रहे हैं कि परमेश्वर के पैरों में वो लोग नहीं गिरते। नहीं, they did not fall at the feet of the devil. वो लोग शैतान के पैरों पे नहीं गिरे हैं। We will suffer, we will suffer. They stood like a Jesus. We will not fall at your feet, devil. वो लोग कहते हैं कि हम दुख उठाए तो उठाएंगे लेकिन हम शैतान के पैरों पे नहीं गिरेंगे। Hallelujah. हालेलुया। That is our testimony, my brothers and sisters. और यही प्रकार की हमारी गवाही होना है। Who knows where personally people may fall at the feet of devil and they get rich. People may fall at the feet of devil and get rich. और कौन मालूम कर पाएगा, हो सकता है लोग शैतान के पैरों पे गिर करके धनी बन जाते हैं। It is better to suffer and be a martyr and live life at the feet of Jesus than fall at the feet of devil. इससे अच्छा है कि परमेश्वर के लिए दुख उठाना, परमेश्वर के लिए शहीद हो जाना, इसके बजाय कि शैतान के पैरों पे गिरकर धनी बन जाना। Hallelujah. Hallelujah. Our testimony is more important. हमारी गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण है। Our school days, what was our testimony? In the college days, what was our testimony? हमारे स्कूल के दिनों में, हमारे कॉलेज के दिनों में हमारी गवाही क्या थी? Recently we had a friends reunion, meeting. अभी अभी हम लोग एक कुछ नए मित्रगण के संपर्क में आए हैं मीटिंग के दौरान। 22 years before we studied together.
कुछ अरसों के पहले हमने साथ में अभ्यास किया। They come to know I'm serving the Lord in Gujarat. They said, we are having a Zoom meeting. Sam, you come and share. और उनको मालूम पड़ा कि हम यहाँ गुजरात में आकर के सेवकाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जूम मीटिंग में आकर के कुछ सेवकाई आपकी सेवकाई प्रदान करें। After the preaching, some of my friends, I come to know how we used to be in those college time. और प्रचार समाप्त होने के बाद कुछ मेरे मित्र को मालूम पड़ा और वो लोग ने ऐसा समझा कि किस प्रकार से हम कॉलेज के दिनों में दिन बिताते थे। Those days there was a 1 month truck strike, lorry strike. Yeah, strike. उन दिनों में 1 महीने की वहां पर हड़ताल हुई थी। Nothing was coming to the hostel. कुछ भी हॉस्टल में नहीं आता था। We used to get only simple rice and dal. केवल दाल चावल खा के गुजारा करना पड़ता। We did not have a paste. We did not have a soap. You know, that was the life we were living 1 month. उन दिनों में हमारे पास ना तो टूथपेस्ट हुआ करती थी, ना साबुन हुआ करता था। ऐसे दिनों में हमें गुजारा करना पड़ा। Everyone was forced to take the neem stick to brush. और प्रत्येक लोगों को जबरदस्ती नीम का दातुन करना पड़ता था। But along with me, we were six friends. We were usually having everyday neem stick only to brush because we did not have a brush and paste. और हम जो 6 मित्र थे हम लोग प्रत्येक दिन नीम के दातुन को ही इस्तेमाल करते थे, नीम की लकड़ी को दातन के तौर पे, क्योंकि हमारे पास ब्रश और टूथपेस्ट नहीं हुआ करता So था। when we were doing that, those other 300 guys were laughing at us. और जब हम लोग इस प्रकार से करते थे, तब जिन लोग के पास इस प्रकार से टूथपेस्ट और ब्रश पाया जाता था, वो लोग हमारी मजाक उड़ाते थे। Later on, उनको भी हमारे रास्ता में आना पड़ा था। और बाद में ऐसा हुआ कि जब उन लोग के पास भी नहीं था, तब उन लोग को वही लकड़ी चबानी पड़ी। My friends were reminding, Sam, do you remember those days how we struggled for paste and brush? और मेरे मित्र जो है, मेरे दोस्त लोग इस प्रकार से याद कर रहे थे कि सैम, तुम्हें मालूम है उन दिनों में हम किस प्रकार से तकलीफ उठाते थे। So in the college, this is our testimony. We suffered. That's all. What happened to Sam Joshua? What happened to Michael? What happened to that John? What happened to that Jasper? The 6 friends, they will say, "Ye bikari se bhi bahut bekar tha. Inka paas kuch bhi nahi." These guys had nothing with them. और 6 मित्रों में से हम इस प्रकार से कहते थे कि उन लोग का खराब समय था, उन लोग के पास कुछ भी नहीं था, वो लोग एकदम गरीब के समान थे। But they were with God. लेकिन वो लोग परमेश्वर के साथ में थे। Hallelujah. I want to Hallelujah. tell you, even little children, when you're in the youth, when you're college days, keep your testimony. After 20, 25 years, they would be able to say, you stood for Jesus in that ground. और मैं जवान और बच्चों सबको बताना चाहता हूं, आपके स्कूल और कॉलेज के दिनों में आप अपनी गवाही को बरकरार रखें। 20-25 साल के बाद जब आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, तब इस प्रकार से वो लोग कह पाएंगे कि ये हमारी गवाही थी। People will forget our degree, people will forget our mark, but they will never forget our life that we lived in that with them. लोग जो हमने डिग्रियां, हमने पदवियां हासिल की है, हमने कितने मार्क्स हमने पाए हैं, वो सब भूल जाएंगे, लेकिन हमारी गवाही को याद रखेंगे। I want to talk to you from the life of Elijah. What was the testimony about Elijah's life? मैं चाहता हूं कि आपके सन्मुख में एक व्यक्ति जो एलीशा है, उसकी गवाही के बारे में आपको बताऊं किस प्रकार से उनकी गवाही थी। Wherever he went, he left a legacy in that place. और जहां कहीं भी वो गया, उस जगह में अपनी एक अच्छी विरासत को छोड़ करके गया। He made a mark, even the child life. उनने उस प्रकार का एक वहां पर निशान, एक संकेत छोड़ दिया, एक छोटे से बच्चे के जीवन में भी। He made a mark in the rich house, as well as in the poor house, to the king also. और उसने एक गरीब के व्यक्ति के जीवन में, उसके घर में, उसके बातों में, और धनी व्यक्ति के जीवन में भी उसने इस प्रकार का कुछ चिन्ह छोड़ दिया। Once he was an assistant prophet, assistant to Elijah. एक समय ऐसा था कि वो एलिया का एक सहायता करने वाला, उसका सेवक पाया जाता था। What was the testimony when he was under training in Elijah's hand? आप जब एलिया के हाथ में प्रशिक्षित होने के समय के दौरान आपकी गवाही क्या है? You know what was the testimony? क्या गवाही थी उसकी? Read with me 2 Kings chapter 3 verse 11 and 12. It talks about the testimony, lifestyle of Elisha. और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा राजा की किताब में दूसरे अध्याय में किस प्रकार से एलीशा की गवाही बताई गई है। Come on. Verse 11 says, but Jehoshaphat asked, is there no prophet of the Lord here through whom we may inquire of the Lord? An officer of the king of Israel answered, come on, Elisha
Everybody, come on. Elisha, the son of Shaphat is here. Come on, this is the testimony. He says, come on, he used to take 100 out of 100 mark. He used to be a gold medalist. He used to speak in different languages. No, what was the testimony? Come on, he used to pour water on the hand of Elijah. This is the testimony about Elisha. और यहाँ पर हम देखते हैं यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ कोई यहोवा का नबी है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सके। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जो एलीशा था उसने 100% मार्क नहीं पाया, ऐसा नहीं लिखा है। उसने बड़ी पदवी हासिल कर दी, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पर गवाही इस प्रकार से बताई गई है उस 11वें अध्याय में कि शापात का पुत्र एलीशा एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वो यहाँ है। Come on, एलिया का हाथों को, हालेलुया। he did not become a mighty prophet one day. He was so humble to pour water to wash his master's hand after he had had his food. वो एक ही दिन में वो बड़ा प्रबोधक नहीं बन गया, वो अपने स्वामी के हाथों को धुलाया करने वाला एक नम्र सेवक बन के रहा है। Elijah may be going out and coming inside. The moment he come inside, Elisha will pour water. Master, wash your hands. एलिया बाहर जाने के समय, जब वापस लौटने के समय एलीशा अपने स्वामी के कहता है कि स्वामी आप ये हाथ धो लीजिए, मैं आपके हाथ धुला रहा हूं। Who was that saying? Who said this testimony? किसने इस प्रकार से उसकी गवाही को बताया? An officer of the king of Israel. एक इस्राएल के राजा का एक कर्मचारी ने इस प्रकार से बताया। Maybe this officer would have come to meet Elijah. Give me a prophetical word. He would have saw Elisha pouring water to Elijah. हो सकता है वो कर्मचारी एक समय में एलीशा के पास, एलिया के पास आकर के कह रहा होगा कि परमेश्वर के पास से जो वचन तुम्हें मिल रहा है मुझे दे। उस समय देखा है कि एलीशा जो है एलिया के हाथ को धुला रहा है। It has impressed this officer what a great man of God doing to the another man of God. और वो उस बात को देख करके ये जो कर्मचारी जो है इस दृश्य को देख करके प्रभावित हो गया कि एक व्यक्ति जो है अपने स्वामी के लिए किस प्रकार से सेवा कर रहा है। Do you know, because of his humble heart, God lifted him up. आपको मालूम है उसके नम्र हृदय के कारण परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। Hallelujah. हालेलुया। You know, kings would come and ask for the word of God to Elisha because he was very humble to serve his master. आपको मालूम है बड़े राजा लोग आकर के उसके पास आके परमेश्वर के वचन के बारे में जांच पड़ताल करते थे। उसका कारण यही था कि एक समय था कि वो अपने स्वामी के सन्मुख में बड़ी नम्रता से रहता था। Even the very first day when Elijah saw Elisha, said, "Follow me," immediately he would follow him. और पहले दिन ही जिस दिन एलिया ने एलीशा को बोला कि तू मेरे पीछे हो ले, तुरंत वो उसके पीछे हो लिया। He cut the oxen, he cut the plowing instrument, everything. He said, "Let me say goodbye to my parents, I will follow you immediately." और उसने उसी समय अपने बैलों को काटा और अपने जो हल जोतने का जो लकड़ी का सामान था उस सब से जला करके बलि चढ़ा करके उसने कहा कि मैं मेरे माता पिता को गुड बाय बाय कह करके मैं आता हूं। A man pours water to wash his master's hand. वो व्यक्ति जो अपने स्वामी के हाथ धुलाया करता था। How do you treat your boss? आप कैसे अपने मालिक के साथ व्यवहार करते हैं? Hello? In his presence, in his absence. उसकी मौजूदगी में और उसकी गैर मौजूदगी में। When you talk to him in the office, when he calls you, how you talk to him. जब आप अपने कार्यालय में होते, अपने बॉस के सम्मुख में बात करते तो कैसे बात करते हैं, और जब उनका फोन आता है तब आप उनके साथ किस प्रकार से बात करते हैं। People are watching us. लोग हमें देखते हैं। In your office, people are watching you. आपके कार्यालय में लोग आपको देखते हैं। How we talk, how we move, how we live. कैसे हम बात करते हैं, कैसे हमारा स्वभाव है, कैसे हम जीते हैं। You know, very often it comes in the news, you know, ये बंदा ऐसा ऐसा काम कर दिया, लास्ट में ये क्रिश्चियन था। सही है ना? They'll do everything. This crime was committed. This person has done this and that. And last, this person was a Christian.
और बहुत बार ऐसा होता है कि समाचार में इस प्रकार के समाचार आते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा काम कर दिया है, और उसके बाद में वहां पर दर्शाया जाता है कि ये व्यक्ति तो ईसाई था, मसीह था। Initially, it used to hurt me. Why they are talking like this? Every Christian is not Christian. But later on, the Holy Spirit of God taught me the world demands from us moral. और उस समय में मुझे बहुत ही बुरा लगता था, क्यों ये लोग इस प्रकार से मसीह लोग करते हैं। लेकिन मुझे तब मालूम चला, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इस जमाने में दुनिया क्रिश्चियन लोगों से, मसीह लोगों से कुछ और अच्छा चाहती है। They did not demand this thing outside. They demand from us. You are a Christian. How can you do this one? They demand from us character. और वो लोग बाहरी लोगों से इतनी अपेक्षा नहीं रखते हैं, ऐसे अच्छे चरित्र की अपेक्षा नहीं रखते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम लोग मसीह हो, और मसीह के पास ऐसे अच्छा चरित्र और अच्छे स्वभाव की लोग अपेक्षा रखते हैं। They keep expectation from us. वो लोग लगातार हमसे इस प्रकार से अपेक्षा रखते The हैं। moment Christian means they comes to their mind, they are good people. That's why they are expect good from us. और उन लोग के मन में इस प्रकार की हमारे प्रति भावना है कि मसीह लोग तो अच्छे लोग होते हैं, इसलिए वो लोग हमसे कुछ अच्छी बातों की, अच्छे स्वभाव की अपेक्षा रखते हैं। In the officer's mind, the moment they said, is there any prophet? He said, I know a prophet, I know a man of God, but his action I remember. I did not remember his word. I know what he used to do. He pours water to his masters to wash his hands. और जब राजा ने अपने कर्मचारी से बात करते हुए कहा कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके पास जा करके हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में पूछे, तब एक कर्मचारी ने इस प्रकार से बताया और कहा कि हाँ, एक व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूं, जो अपने स्वामी के हाथ धुलाया करता था। I want to be like that person. मैं उस व्यक्ति के जैसा बनना Come चाहता on, हूं। lift a hand and say, Lord, give me such a humble heart, Lord. हाथ उठाकर हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहे कि प्रभु ऐसा ही नम्र हृदय मुझे दीजिए। I will never work against my boss. ओ मैं कभी भी मेरे मालिक के विरुद्ध में काम नहीं करूंगा। I will never speak or write against my boss. मैं कभी भी मेरे मालिक के विरुद्ध में कुछ नहीं बोलूंगा। Rather, I will be a help and support to him or her. ओ मैं उसकी सहायता करूंगा और उसके पक्ष में रहूंगा। Thank you, Jesus. Come on. Hallelujah. 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 हालेलुया। Help us, Lord, to serve humbly to our leaders. ओ हमारी सहायता करे प्रभु, हमारे अगुओं की सेवा, उनके पीछे हम नम्रता से चल सकें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। I really like the testimony the officer gave about Elisha. और मैंने इस बात को पढ़ा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक कर्मचारी ने एलीशा के बारे में गवाही दिया। Maybe ever since Elijah was with him, maybe he may be always with the water bottle, with the cup. I will pour water. I will pour water. I will pour water. हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि एलिया के साथ हमेशा व्यक्ति खड़ा रहे, पानी लेकर के खड़ा रहता होगा। जब एलिया के हाथ धुलाने होते होंगे तो एलीशा इस प्रकार से सोचता होगा, मैं पानी उसके हाथों के ऊपर डालूं। So the second testimony, Jehoshaphat said, come on, the officer said he pours water for his master. The second, Jehoshaphat said, come on, the word of the Lord is with him. So the king of Israel and Jehoshaphat and the king of Edom went down to him. और यहाँ पर हम देखते हैं राजा के कर्मचारी ने जिस प्रकार से एलीशा के बारे में गवाही दिया, उसके बाद में राजा खुद उस व्यक्ति के बारे में, उस प्रबोधक के बारे में इस प्रकार से गवाही देता है कि तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। Come on, 3 kings were going down to a man once upon a time pouring water for his master. 3 kings were going to meet this humble man. और 3 व्यक्ति जो है इस नम्र व्यक्ति को मिलने के लिए गए थे, जो व्यक्ति अपने स्वामी के हाथ धुलाया करता। This is what I like it. They did not say, okay, that fellow used to pour water, now ask him to come before us. और ऐसा नहीं सोचा उन लोग कि हाँ, तो ये वही व्यक्ति है ना जो अपने स्वामी के हाथ धुलाया करता था, जाओ उसको बोलो कि बाहर आए। Let him pour water for us also. ओ ऐसा कहिए उसको कि हमारे भी हाथ धुलाएं। But what was he saying? Come on, Jehoshaphat said, everybody come on. Jehoshaphat said, the word of the Lord is with him. Come on. So the king of Israel and Jehoshaphat and king of Edom went down to him. और यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों राजा, यहोशापात और एदोम का राजा और इस्राएल का राजा, उस
एलीशा के पास, प्रबोधक के पास पहुंचे। Hallelujah. हालेलुया। That's the testimony of the kings about a man who used to pour water for the master. और यही तो गवाही दिया 18 राजाओं ने, जिस व्यक्ति जो अपने स्वामी के हाथ धुलाया करता था उसके बारे में। One day he used to pour, but today he is the prophet for the nation. एक दिन वो हाथ धुलाया करता था, लेकिन आज पूरे देश के लिए प्रबोधक बना हुआ है Kings were going to him. और लोग उसके पास जाते हैं। That's what the word of God says, my brothers and sisters, be humble, he will lift you up. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि नम्र बनो, तब परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पे उठाएगा। Stay humble all the time. Remain humble yourself before the Lord. हमेशा हर समय परमेश्वर के सन्मुख में आप दीन बन के रहें। The officials, the main testimony about Elisha, he is so humble man of God. सबसे मुख्य गवाही जो कर्मचारी ने दिया वो तो इस प्रकार से कहा कि वो व्यक्ति जो है अपने स्वामी के सामने सन्मुख में नम्र और दीन है। Never allow the pride enter inside our life. कभी भी हमारे जीवन में घमंड को अनुमति ना दे, Be away from that. उससे हम दूर रहें। This is what my brother always taught us. You know, the moment you think you are humble, you are in pride. मेरे भाई जो मुझे सिखाते हैं, जिस समय आप सोचते हैं कि आप बड़े नम्र हैं, तभी आपके अंदर घमंड प्रवेश चुका है। But the घमंड व्यक्ति सोचता है मैं घमंड हूं, मैं घमंड हूं. The pride person says, I am pride, I am just humble. That is the humble. लेकिन जब ऐसा बड़ा घमंडी व्यक्ति जो बड़ा हो कहता है कि वो मैं घमंडी हूं, तब मान लीजिए कि वो अपने आप को नम्र बना रहा है। He is aware I should be humble. और तब वो अपने आप को नम्र बनाता है और अपने आप में इस प्रकार से सचेत रहता है कि मुझे नम्र बन के रहना है। One thing was very visible in the life of Elisha was a humble man of God. बहुत ही एक बात जो एलीशा के जीवन में दृश्यमान हुआ करती थी, वो बात ये थी कि वो परमेश्वर के सन्मुख में दीन व्यक्ति था। Man used to pour water to his master. वो व्यक्ति जो अपने स्वामी के हाथ को धुलाया करता था। King was saying, the word of God is with him. और राजा ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर का वचन उसके साथ आता है। And the chapter 2, 2 Kings chapter 3 verse 15. और हम यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा राजा का 3 अध्याय 15वां पद। Come on, but now bring me a harpist. While the harpist was playing, the hand of the Lord came on Elisha. पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। Hallelujah. Hallelujah. People saw the testimony, the hand of God, the power of God was upon Elisha, who was very humble beginning. लोगों ने देखा उसकी गवाही के बारे में एक नम्र व्यक्ति को और कहा कि परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर है, परमेश्वर का वचन उसके पास है। The power of God came upon Elisha. The hand of God came upon Elisha. परमेश्वर का सामर्थ एलीशा के ऊपर आया, परमेश्वर का हाथ एलीशा के ऊपर आया। That's enough for our life, my brothers and sisters. We may not have any officer's hand, any person's hand, any family hand, any friend's hand, any foreign hand. One hand of God is enough for us. मेरे प्रियो, इसके समान हम देख पाते कि यदि किसी का भी हाथ, हमारे अधिकारी या हमारे स्वामी या किसी का भी हाथ हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का हाथ और परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर है, तो हमारे लिए पर्याप्त है। The moment he asked the harpist play, started to worship God, he would have been thanking God, asking God, praying to God. The hand of God came upon Elisha. और जिस क्षण उसने उस बजाने वाले को बजाना शुरू करवाया और जब वो लोग ने आराधना करना शुरू की, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर उतर आया। I want to pray for all the musicians. When you play the music, those who are listening us online, when you play the guitar, when you play the keyboard, when you play the music instrument, anything, pray the hand of God come upon everyone listening to that. और सभी लोग जितने बजाने वाले हैं उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आप गिटार बजाते होंगे, ड्रम बजाते होंगे, कीबोर्ड बजाते होंगे, जब आप बजाएंगे मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का हाथ प्रत्येक के ऊपर उतरने पाए। Lift a hand and pray. When you sing, the hand of God, the power of God must come upon the people. वो जब आप गाएंगे तब परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का हाथ लोगों के ऊपर उतरने पाए। Come on, pray, pray. When you preach, Hallelujah. when you pray, the surrounding place, the power of God,
the hand of God must come upon the people. वो जब आप प्रचार करें, संदेश सुनाए, ऐसे समय में परमेश्वर की सामर्थ आसपास के लोगों के ऊपर उतर आए, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर उतरने पाए। Even in the Sunday school, when you teach, when you talk to the youth, pray, Lord, your hand, the power of God come upon them. वो जब आप संडे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जवानों को कुछ सिखा रहे हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का हाथ उन लोग के ऊपर उतर पाए। Even teacher, when you teach, when the professor, when you teach, pray, the hand of the God, Lord, come upon your students. वो शिक्षक आप जब पढ़ाने के समय में और अध्यापक जब आप पढ़ाने के समय में प्रार्थना करें और कहे कि प्रभु इन सब के ऊपर आपकी सामर्थ और आपका हाथ उतरने पाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। Hand of God came upon them. परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर उतर आया। The master is gone. वो स्वामी चला गया है। जिसको पानी डालते रहता था ना, he was keep on pouring to wash. That master's hand is not there now. वो जिनके हाथ धुलाया करता था, वो स्वामी तो अभी नहीं रहा है। His hand is no more with him. उसका हाथ उसके साथ में नहीं है अभी ज्यादा। But people saw the hand of God came upon Elisha. लेकिन लोगों ने देखा कि परमेश्वर का हाथ एलीशा के ऊपर उतर आया है। Have you lost your loved one? You lost the hand which was helping you. Let me tell you, hand of God is upon your life. क्या आपने अपने प्रियो को खोया है? क्या आपकी मदद करने वाले हाथ को आपने कभी खोया है? आप प्रार्थना करें, परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में उतर आए। Fourth testimony. चौथी गवाही, 2 Kings chapter 4 verse 9. दूसरा राजा का पुस्तक 4 अध्याय 9 पद। The Shunammite testimony about Elisha. वो सुनने की गवाही एलीशा के बारे में। She said to her husband, उसने अपने पति से कहा, I know, everybody come on, I know that this man who comes to our way is a holy man of God. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। A testimony of the Shunammite. एक शूनेमिन की गवाही। Whenever Elijah would go through that way, he would stop in the rich family's house. और जब कभी भी उस रास्ते से होकर के गुजरने के समय में इस घर के अंदर वो ठहरा करता था। When you would enter inside that room, when you enter inside that house, the compound, she said, this man is a holy man of God. और जब वो व्यक्ति एलीशा जब उसके घर में प्रवेशने के समय में, उसके आंगन में प्रवेशने के समय में, वहां से होकर गुजरने के समय में उसने कहा कि मुझे ये तो परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है। She said, we need to do something for him. उसने कहा कि हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। Let's make a room for him. आइए हम उसके लिए एक कमरा बनाते He may हैं। be tired, he may be full of weaknesses. Let him stay in our house. हो सकता है वो थका हुआ होगा, कमजोर होगा, वो अपने घर में उस थोड़ा आराम करने पाए। Every house we go, this should be our testimony. जिस घर में जहां कहीं भी हम जाते हैं, यही हमारी गवाही होना चाहिए। Somebody say. कोई कहे मैं। In our children, when they go to somebody's house, this should be the testimony about our children. हमारे बच्चे यदि किसी के घर में जाते हैं तो हमारे बच्चों के बारे में भी यही गवाही होनी चाहिए। I want to tell you, the holiness, it influences the other person. और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने जो पवित्रता है वो दूसरे व्यक्ति को प्रभावी बनाती है। It changes the circumstances. वो अपना पवित्रता का प्रभाव उनके ऊपर डालने से उस जहां की परिस्थिति को बदल देती है। The holiness on this man of God is so strong, his bed carried the power of God. और ये व्यक्ति जो है उसमें पवित्रता बहुत ही भरी हुई थी। उसका बिछोना, उस जिस पलंग पे वो सोता था, वो भी परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ था। Hallelujah. Hallelujah. When the son died, where that the Shunammite took the child, kept it where the Elijah used to sleep. This place has the power of God. Holy man of God is here. My son will come back to life. वो जब सुनेमिन का पुत्र जब मर गया, तब उसने और किसी स्थान पे अपने बेटे को उठा करके नहीं रखा। अपने बेटे को उठाया और जहां एलीशा सोता था उस पलंग पे उसने रखा और कहा कि इस जगह पे परमेश्वर की सामर्थ्य, मेरा बेटा यहाँ पर वापस आ सकता है। The rich woman did not take the son to the hospital.
kept the upper room where Elisha was staying. और इस धनी स्त्री ने अपने बेटे को लेकर के अस्पताल में नहीं गई, लेकिन उस प्रबोधक जहां पर परमेश्वर का जन जिस स्थान पे सोता था उस स्थान पे उसने उसको रखा। Hallelujah. हालेलुया। I like this Shunammite woman. She knows where to place her problem. और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है सुनेमिन स्त्री, उसको मालूम था कि अपनी समस्या को कहां पर रखना है। She didn't put it in the Facebook status or a WhatsApp status. I am sad. I lost. No, she knows. This is not. She did not keep in her room. Said there. I received a promise there. I received the prophecy there. That man has a power of God, holy man. I will lay him there, my son there. और उसने इस प्रकार से, जैसे आज लोग अपना स्टेटस डालते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इस प्रकार से नहीं डाला कि मैं मेरे बेटे को खो दिया है। उसने इस प्रकार से सोचा कि मैं उस मेरे बेटे को जहां परमेश्वर का जन ठहरता है वहां पर रखूंगा। उसने अपनी समस्या अपने बेटे को ले जाकर के वहां रखा कि उसने कहा कि यहां से मैंने वचन को पाया था, यहां से मैंने प्रतिज्ञा को पाया था। See, that the word is very powerful. Come on, everybody read. She said to her, come on. There's a talk going between husband and wife. आप She देखिए यहाँ said पर to her husband, I know that this man who comes sometime, no. Come on, everybody. I know this man who comes, who often comes our way, is a holy man of God. और यहाँ पर हम देखते हैं एक पति पत्नी के बीच में जो संवाद हो रहा है, वो एक दूसरे पत्नी अपने पति से किस प्रकार से कह रही, वो कहती है कि ये व्यक्ति यहाँ से जाने के एक बार जाता है, ऐसा नहीं कहा उसने कहा कि ये व्यक्ति जो बार बार यहाँ से जा रहा है, मुझे वो परमेश्वर का पवित्र जन जान पड़ता है। But in our Indian culture, if we go very often, we became like, ये बंदा क्यों आता है? हमारे भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो यदि हम बार बार एक स्थान पे होकर के जाते हैं तो लोग ऐसे बात करते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ से बार बार क्यों जाता है। Hello? We become tired of that person. और हम इस व्यक्ति को देख करके फिर कंटाल जाते हैं। But this man, लेकिन ये व्यक्ति, so he comes very often, but he is a holy man of God. वो कहते हैं कि बहुत बार यहाँ से होकर के जाता है, लेकिन ये तो पवित्र जन है। That's the testimony about Elisha. और यही तो गवाही एलीशा के बारे में हम देखते हैं। Lift a hand. हमारे हाथ उठाएं। I should not be remembered for my sinful nature, sinful act. Lord, let me be remembered for you, to live like you, Lord Jesus. ओ मैं पापी अपराधी के समान, मेरे पापी स्वभाव के जैसे मैं ना जाना जाऊं, लेकिन प्रभु आपके स्वभाव से आपके जैसे मैं जाना जाऊं। Come on, pray. Hallelujah. Hallelujah. Lord, let not people remember my past wicked life. Let them remember for life that live with Jesus. वो लोग मेरे अतीत को, जो मेरा बुरा अतीत है, उसको याद ना रख पाए, लेकिन प्रभु जो आपके साथ मेरा जीवन है उसको देख सकें। Help us, Lord. हमारी मदद करे In प्रभु, Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते The हैं। fifth one, पांचवी बात है, a little girl's testimony. एक छोटी सी लड़की ने उसके बारे में गवाही You दिया। know, this man was, I was literally like this man of God. और मुझे बहुत ही अच्छा ये परमेश्वर का जन लगता है। Every group of people were touched by his life. हर एक समुदाय के, हर एक आयु के लोग को उसका जीवन ने छुआ है। Now, a small girl's testimony, एक छोटी सी लड़की की गवाही हम a देखते हैं, rich woman's testimony, एक धनी स्त्री की गवाही, officer's testimony, और एक कर्मचारी की गवाही, king's testimony. राजा ने दी गवाही। He did not live a parallel life. Okay, he was not living in a small box of influence. He was influencing everybody, blessing everybody. और वो तो छोटे से अपने संतुलित जीवन में, समतल जैसा एक जैसा जीवन में नहीं जिया है, लेकिन उसने अपने जीवन के द्वारा प्रत्येक वर्ग के लोगों के ऊपर प्रभाव डाला। I pray like this, our life also will be influencing everybody. और मैं भी प्रार्थना करता हूं कि हमारा जीवन भी इस प्रकार से बन सके कि प्रत्येक जन के ऊपर हमारा जीवन प्रभाव डालने वाला बन जाए। You know, go home and meditate upon Elisha's life. It's so beautiful. आप घर जा करके एलीशा के जीवन के बारे में अध्ययन करें, आप समझेंगे बहुत ही सुंदर बातें हैं यहाँ पर। Even biblical scholars say Elijah was almost like Jesus in the Old Testament. बहुत सारे बाइबल के विद्वान लोग भी इस प्रकार से कहते हैं कि एलीशा जो है पुराने नियम के यीशु मसीह के समान पाया जाता है। He did most of the miracles same like Jesus did the miracle.
उसने उस प्रकार से वही चमत्कार किए जैसे यीशु मसीह ने भी अपने जीवन काल में चमत्कार किए। Like a little children will come and sit with Jesus. Same thing with this man also. छोटे बच्चे यीशु मसीह के पास आकर के बैठा करते थे, वैसे ही छोटे बच्चे एलीशा के पास आकर के बैठा करते थे। 2 Kings chapter 5 verse 2 and 3. We all know this one. I just want to read only the verse 3. She said to her mistress, come on everybody, verse 3. She said to her mistress, if only my master see the prophet who is in Samaria. दूसरे कलम में इस प्रकार से लिखा है कि यदि मेरा स्वामी जो प्रबोधक शमरोन में है उसको जा करके मिले तो। The girl, how matured, how beautifully says, my master would see my another master who is the superior prophet. The last line said, he would cure him of his leprosy. और वो लड़की कहती है कि मेरा जो एक स्वामी है वहां पर है, अपना दूसरे स्वामी को कहती है कि यदि वो वहां पर जाए तो छुटकारा पा सकता है। If only my master would see the prophet. केवल मेरा स्वामी जो है जा करके उस प्रबोधक से मिले। Come on. She said, no, come on. If only, everybody read, come on. If only my master would see the prophet who is in Samaria. She's not saying, you take this one, you took that one. No, no, no. Just go and see him. Such an influence Elijah did in this small girl's life. और आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रभाव एलीशा के जीवन के बारे में इस छोटी सी लड़की के अंदर पाया जाता है। Ma'am, tell my master, he doesn't need to do anything. Just go and see him. Let him visit my master, the prophet. वो अपनी मालकिन से कहती है कि केवल तुम मेरे स्वामी को कहो कि जा करके उस प्रबोधक को सिर्फ मिले और उसको कुछ करना नहीं है। You know, this is what I dream when I read. I put the feelings. Maybe the little girl would have thought, okay, the mistress will say, you do one thing, baby. You also go with the master and take him to that master. She would have expected, you know, but I do not know what happened. Did this little girl went with the leprosy man? I do not know. But she was saying, just let him see my prophet there. यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लड़की के बारे में उसकी स्वामिनी ने ऐसा नहीं कहा कि तू अपने जो स्वामी है उसके पास जा, वो कोढ़ी है, लेकिन उस स्त्री ने इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने इतना ही कहा उस लड़की ने कि वो मेरे स्वामी जो है मेरे इस प्रबोधक को जाकर के मिले। Hallelujah. हालेलुया। You know, I do not know, you know, how deeply the man of God influenced this little heart, but truly it was seeing outside as a testimony she was living in the alien land. और मुझे नहीं मालूम कितनी गहराई में परमेश्वर के जन ने इस छोटी सी लड़की के जीवन में प्रभाव डाला है, लेकिन इस बंदी अवस्था में भी दूसरे देश में एक अकेलेपन में भी इस छोटी लड़की ने उसकी गवाही उसके बारे में वहां पर अपने स्वामीन को बताई। The girl would have forgotten her father, mother, friends, place. She could not able to forget this man of God. उस लड़की ने हो सकता है अपने माता पिता को भूल गई होगी, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को भूल गई होगी, लेकिन वो लड़की उस महान प्रबोधक को नहीं भुला पाई है। Hallelujah. हालेलुया। What a life he lived. ओ कैसा जीवन उसने जिया है। A slave girl remembers him. एक गुलाम लड़की ने उसको याद रखा है। Can your servant remember you? क्या आपका नौकर, आपका सेवक आपको याद रखता है? Hello? Can the small people, those who are sweeping our house outside the street, can they remember us? क्या जो लोग हमारे घर की सफाई करते हैं, हमारी गली में सफाई करते हैं, वो लोग क्या हमें याद करते हैं? There was one thing, it was very much shocking for me. For the New Year service, I went for a police approval, letter. और नए वर्ष की जो मीटिंग थी, नए साल की मीटिंग के लिए मैं पुलिस स्टेशन में गया, वहां पर से उनका अप्रूवल पाने के लिए। I was wearing double mask, I was a sunglass, I was having cap. I went and sit and talked to him. He said, come and sit this side. और मैं तो मास्क लगा के सब कुछ लगा के पूरी अच्छे से सुरक्षित होकर के मैं गया था। उन्होंने कहा कि आप इस साइड में बैठें। I removed my sunglass and I kept. Then he said, come here. और जब मैंने मेरे सनग्लासेस निकाले तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर आओ। मैंने बोला क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? No. He said, I visited your house. तब उन्होंने बताया कि मैंने आपके घर की मुलाकात लिया हुआ है। I said, how did you know me?
मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कैसे जानते हैं? He said, I identify with your eyes. तब उन्होंने बताया कि मैंने आपकी आंखों से मैं आपको पहचानता हूं। He saw my eyes. He was giving my house address. उसने मेरी आंखों को देखा और उसने मेरे घर कहां पर है वो भी बताया। Then I understand the power of Indian police. तब मैं इस भारतीय पुलिस की जो सामर्थ्य है उसको पहचान सका। I said, what a powerful the man was having. Remembers, he met me few years before. और कितने सामर्थ्य और शक्ति इस व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। थोड़े साल पहले ये व्यक्ति मुझे मिला था। But I was questioning myself, what way people will remember us. लेकिन मैंने अपने आप से सवाल करा कि किस बात को लेकर के लोग हमें याद करते हैं। My neighbors, my surrounding people, for what they will remember us. हमारे आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी किस बात को लेकर के हमें याद करते हैं। This small girl remembers the man of God. Go there, you see him, that is enough. You meet my prophet, that is enough. और ये छोटी सी लड़की इस प्रकार से कह रही कि तू मेरे केवल प्रबोधक के पास पहुंच जा, वही तेरे लिए काफी है। How is our life, my brothers and sisters? हमारा जीवन कैसा है मेरे प्रिय भाई और Let बहन? us live a life, be a blessing to everyone. आइए हम ऐसा जीवन जिए कि सभी लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। Elijah influenced the life of a slave little girl. एलीशा ने अपने जीवन का प्रभाव इस छोटी गुलाम लड़की के ऊपर भी डाला हुआ है। Elijah influenced the life of a rich woman. और एलीशा ने उस धनी स्त्री के जीवन के ऊपर भी अपना प्रभाव डाला है। Elijah influenced the man Jehoshaphat, king's heart also. और एलीशा ने उस राजा यहोशाफात के जीवन में भी अपना प्रभाव डाला हुआ है। Elisha ruled, touched the heart of the officer also. और एलीशा ने अपना जीवन का प्रभाव जो है उस कर्मचारी के जीवन के पर भी डाला हुआ है। And the last day of Elijah, what was happened to him is very powerful. और एलीशा के अंतिम दिन में क्या हुआ, उनके आखिरी दिनों में क्या हुआ, वो बहुत ही सामर्थ्य बात है। 2 Kings 13:14. दूसरा राजा 13वां अध्याय 14वां पद। Come on, now Elijah has been suffering from the illness which he died. और एलीशा यहाँ पर उस रोग उसको लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। Jehoshaphat, king of Israel, went down to see him and wept over him. तब इस्राएल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा। Come on, what was he? A king crying to the man of God who was pouring water to his master. This is what it says. My father, he cried, the chariots and horsemen of Israel. एक राजा उस व्यक्ति के पास जा रहा है जो अपने स्वामी के हाथ धुलाया करता था, उसके पास जा करके रो करके इस प्रकार से कहता है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। My father, my father. मेरे पिता, मेरे पिता। King was counting him as his father. और राजा उसको अपने पिता के जैसा उसको गिनता था। He lived as a father figure. एलीशा एक पिता के समान उसने जीवन बिताया। Then I understood that's why the little girl could remember. That's why the rich man women can understand influence, because he had a heart of a father. तभी मुझे समझ में आया कि उस छोटी लड़की के जीवन में भी इस प्रकार से उसका प्रभाव क्यों है, और उस धनी व्यक्ति के जीवन में भी एलीशा का इतना ज्यादा प्रभाव क्यों पाया जाता है, क्योंकि वो तो एक पिता के हृदय के समान, पिता के जैसा उन लोग के साथ उसने जीवन जिया है। Hallelujah. हालेलुया। He had a heart of a father. हमारे पास भी ऐसा एक पिता का हृदय He होना did not have चाहिए। a heart of a boss. He had a heart of a father. उसके पास एक मालिक का हृदय नहीं था, लेकिन उसके पास एक पिता का हृदय था। That's why when his master was eating, he was there to wash the master's hand. He had a heart of a father. इसलिए जब अपना स्वामी खाने बैठने के समय में वो अपने स्वामी के हाथ धुलाया करता था, क्योंकि उसके पास एक पिता का हृदय था। So next Sunday is a Father's Sunday. आने वाला रविवार जो एक फादर संडे के रूप में मनाया जाएगा। God wanted to have a father's heart. परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर एक पिता का हृदय हो, Heavenly Father's heart. वो स्वर्गीय पिता का हृदय, Touching everyone. हर एक को छूने वाला। Hallelujah. Even to our enemies, we should be a blessing. वो हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन के लिए भी हम आशीष का कारण होना चाहिए। People dislike you, you should love them. लोग आपको नापसंद करे तो भी आपको उनसे प्रेम करना है। He was a really father, the least of the least to the great of the great, the officers
everybody accepted him as a father. और वो सबके लिए एक पिता के समान था, छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए, बड़े राजा के लिए, राजा के कर्मचारी के लिए, प्रत्येक जन के लिए एक पिता के समान था। He was a prophet, but he was a father. वो एक प्रबोधक था, लेकिन वो एक पिता था। Today, people, the moment they see a prophet, there is a scared, there is a fear. और आज लोग जब प्रबोधक को देखते हैं तो वो लोग डरते हैं, उनसे भयभीत होते हैं। But Elijah was a prophet with the father heart. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एलीशा प्रबोधक था, एक पिता के हृदय के साथ। These are the testimony about Elisha. और ये सारी जो गवाही थी एलीशा के बारे में, What we sow, we will reap. जो कुछ हम बोएंगे वही हम काटेंगे। You know, Jehoshaphat was saying, my father. Do you know one thing? Elisha said the same thing when Elijah was going. यहोशापात ने भी इस प्रकार से यहोवास ने कहा कि हे मेरे पिता, आपको मालूम है जब एलीशा के पास से उठाया गया तब एलीशा ने भी यही शब्द बोले थे, हे मेरे पिता। 2 Kings 2:12. Come on. The same word Elisha was used for Elisha. दूसरा राजा उसमें इस प्रकार से 12वें आयत में लिखा है, जो शब्द इस यहोवास राजा ने एलीशा के बारे में बोला है, वही शब्द एलीशा ने एलिया के बारे में बोला है। Come on, everybody read. Elisha saw this and cried out. Everybody, come on. Elisha saw this and cried out, my father, the chariots and horsemen of Israel. And Elisha saw him no more. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों, जब वह उसको फिर देख न पड़ा। You know, this scripture is a very big sermon, okay? I'm just putting it in conclusion. और इस वचन के अंदर तो बहुत ही बड़ा संदेश है, मैं आपको संस्कृत में बताता हूँ। He saw him as a father. उसने उसको पिता के जैसे देखा। He saw him as a warrior. और उसने एक योद्धा के जैसा देखा। You are standing and saying, now who will fight for Israel? You are gone. वो कहता है वहां पर खड़ा रह के कि अभी इजराइल के लिए कौन लड़ेगा, तू तो चला गया। The same thing Elijah said to Elisha. Elisha said to Elijah. और वही बात एलीशा ने एलिया के बारे में भी बोला। After so many years, बहुत सालों के बाद kings changed, राजा बदल गए, time changed, समय बदल गया, everything around him changed. उसके आसपास की सारी बातें बदल गई। But the word of honor which he gave to his master, he received it at the end. लेकिन जो आदर और सम्मान की बातें उसने अपने स्वामी के लिए बोली थी, अपने आखिरी दिनों में वही आदर और सम्मान इस राजा के पास से उसको मिल रहा है। Now king is crying, my father, the horseman, chariot of Israel. वो राजा इस प्रकार से रो करके कह रहा है कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे इस्राएल के रथ और सवारों। Shall we stand in the presence of God? हाँ, ये परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े हो जाएं। Let's live like this man of God. आइए इस परमेश्वर के जन के जैसे हम जिए। Lord, we need your grace of God. प्रभु आपके अनुग्रह की हमें जरूरत है। To bless the little of the little one. प्रभु छोटे से छोटे को आशीषित करने के लिए। To take care of our surrounding, O Lord. वो हमारे आसपास के लोगों की देखभाल के लिए प्रभु। There's one prayer I want every one of us to pray. और एक ही प्रार्थना मैं चाहता हूं कि हम सब लोग करें, That we will never show partiality. कभी भी हम पक्षपात नहीं करेंगे। Rich or a poor, educated or uneducated, own people or a foreigner, alien, we will love everyone with the love of Jesus. पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, धनवान हो या गरीब हो, विदेशी हो या देशी हो, कोई भी हो, हम उनके बीच में भेदभाव नहीं रखेंगे। Philippians 2:13. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 13वां पद। It is God, everybody come on. It is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। Elisha allowed God to mold him, work in his life. और एलीशा इस प्रकार से चाहता था कि परमेश्वर उसके जीवन में काम करे, उसके जीवन को बनाए। That God work in our life for his will.
पर होने पाए कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे ताकि उसकी इच्छा पूरी हो। Come on, read English more. It is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. और यहाँ पर ऐसा हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। Let God work in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर काम करे। Like a father, I want to be. पिता के समान मैं बनना चाहता हूं। Again, every time Father's Day, Mother's Day, for me, being a father or being a mother, it's not a marital status. It is the heart. हर बार जब फादर्स डे आता है, मदर्स डे आता है, मेरे लिए एक वैवाहिक या फिर एक सामाजिक माता पिता की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक पिता और माता के हृदय के साथ हम चलें सबके लिए। There are so many young people I know. There are so many children I know. They have a heart of a father, heart of a mother in loving, in taking care. वहां पर ऐसे जवान लोग भी मैं देखता हूं, ऐसे बच्चे को भी देखता हूं कि उनके अंदर ऐसे पिता का हृदय पाया जाता है, एक प्रेम करने वाला, एक देखभाल करने वाला हृदय उनके अंदर पाया जाता है। Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I come. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. तुझ में ही मेरे सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, लेकिन तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, लेकिन तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। 2 Kings chapter 13 verse 21. This man's life was such a blessing. Even after his death, his dry bones
carried the anointing, carried the blessing. Okay, this is what we read in 2 Kings 13 verse 21. Come on. Once, while some Israelites were burying a man, suddenly they saw a band of raiders. So they threw the man's body into Elisha's tomb. When the body touched Elisha's bone, the man came to life and stood up on his feet. यहाँ पर एलीशा के बारे में हम देखते हैं, जब उसकी हड्डियां जब वहां पर रखी गई थी उस स्थान में, 20वीं आयत में ऐसा लिखा है, तब एलीशा मर गया और उससे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब देश के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियां से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Truly a man, the heart of a father. सचमुच में ये व्यक्ति के पास पिता का हृदय पाया जाता था। Even after his life, उसके जीवन के पश्चात भी a beautiful life he lived. बहुत ही सुंदर जीवन उसने जिया। He lived like Jesus. वो यीशु मसीह के जैसा उसने जिया। Lift a hand and ask God, give me the grace to live like him, O Lord. वो हाथ उठा करके हम परमेश्वर से मांगे, कहें कि प्रभु उसके जैसा जीने के लिए मुझे अनुग्रह दे। The reason he had a double portion of anointing. और उसी कारण उसने 2 गुना अभिषेक पाया। He had the double portion of anointing that was shut in his bone also. और वो 2 गुना अभिषेक उसके हड्डियों में भी पाया जाता। Come on, receive it in Jesus' यीशु name. के नाम में आप उसको स्वीकार करें, ग्रहण करें। Ask God, Lord, anoint me with the double portion of God. वो परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं चाहता हूँ 2 गुना अभिषेक मेरे जीवन में। My life will never be the same, O God. और मेरा जीवन प्रभु ऐसा ही नहीं बना रहना चाहिए। I need your touch, Lord. मुझे आपका स्पर्श चाहिए प्रभु। To live for you, I need your strength, वो Lord. आपके लिए जीने के लिए मुझे बल चाहिए प्रभु। To stand for you, I need your grace, O God. आपके लिए खड़े रहने के लिए मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। What a blessed life he lived even after his life also, Lord. ओ कितना धन्य जीवन उसने जिया, उसके जीवन के पश्चात भी प्रभु। Touched every layer, every part of the people's life. ओ प्रभु हमारा जीवन के द्वारा प्रत्येक लोगों के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर छुआ जाए, प्रभाव डाला जाए। Help us, Lord. हमारी मदद करे प्रभु। Dono hath uttaka. Come on, seriously, I want you to Hallelujah. pray. Just like Elisha, he was a blessing to the servant, maid, small, to middle, to the rich, to the king. Come on, hallelujah. Let एलीशा our के life जैसे be like प्रार्थना करे, उस छोटी लड़की के पास, उसके स्वामिनी के, धनी और गरीब सबके लिए आशीष का कारण बना। Come on, the day we close our eyes and enter into eternity, people, no one, everyone come across in our life should be blessed by us. वो जब हमारी आंखों को हम बंद करें, हम अनंतता में जब चले जाए, तब हमारे आसपास के लोग इस बात को समझ सके और उनके हमारे जीवन के द्वारा जो आशीष है उनको मिली वो याद करें। Hallelujah. Bless me to be a blessing, Lord. प्रभु आप मुझे आशीषित बनाए ताकि मैं आशीष का कारण बन जाऊं। Everyone around me, everyone that I know, everyone that I meet, everyone that I talk should be blessed through us, oh God. मेरे आसपास के लोगों के लिए, जिनके साथ मैं बात करूं, जिनके साथ मैं रहूं, जिनके साथ मैं जाऊं, सबके लिए आशीष का कारण बनूं प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Bless your children and be with them, oh God. आपके बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु और उनके साथ रहिए। We will live a life of touching, influencing, blessing our surrounding, oh Lord. प्रभु हमें ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, हमें ऐसा जीवन जिए दूसरों को छूने वाला, दूसरों के पर प्रभाव डालने वाला, दूसरों को आशीषित करने वाला प्रभु। I want to pray one prayer. मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। See, yes, we are a blessing to a maid. We are a blessing to our colleagues. We have been a blessing to our neighbors. We need to be a blessing to our rulers, kings also. हम जब हमारे नौकर को, हमारे सेवक को, हमारे सभी लोगों के लिए आशीष का कारण है, तो हमें चाहिए कि हमारे जो अधिकार चलाने वाले, हमारे सत्ता में जो है, उन सभी के लिए भी हम आशीष का कारण होना चाहिए। How many of you have the desire? आप में से कितने लोग के पास ऐसी इच्छा है? You to become a blessing to chief ministers. You to become a blessing to prime minister. You to become a blessing to kings,
rulers, authorities. Come on. Yadi- That we need to do. Hallelujah. That is what God wants to do in your life. यदि आप मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री Thank you, के लिए, Jesus. ऐसे राजाओं के लिए आशीष के कारण बनने के लिए जीवन आपको मिले, हालेलुया, ऐसे हमें जीवन जीने के लिए प्रार्थना करें। You know, the last one, the king was coming and crying, my father, my father. What a blessing. वो अंत में जैसे हमने पढ़ा, वो राजा आकर के कहता कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, कितने आशीष की बात है ये। थैंक यू लॉर्ड। God, I release that grace upon everyone watching, listening here, oh God. Give them the grace to be a blessing to the least, to the greatest, oh God. ओ प्रभु, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इस प्रकार की आशीष उनके जीवन में मैं प्रवाहित करता हूँ प्रभु। Yes, Lord, we receive it, Lord. ओ हाँ प्रभु, हम उन बातों को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। We will carry the heart of the Father. Bless everyone, oh Lord. हम ऐसा एक पिता का हृदय लेकर के चलेंगे ताकि सबको हम आशीष कर पाएं। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। Amen. Amen. Let's give a big hand to the Lord. Come on. Hallelujah. Praise the Lord. Shandara baladara. Rubaladara ba shandara. Hallelujah. Hallelujah. Come on, God is doing something in our life. Our life will never be the same. हमारा जीवन में परमेश्वर कुछ न कुछ करने जा रहा है, हमारा जीवन ऐसे ही नहीं बना रहेगा। I want to tell you, till now, अभी तक आपने कुएं के मेंढक जैसे जिया होगा. Have come out of the box, pretty small box. There is a bigger way God want to use you. अभी तक हो सकता है आपने कुएं के मेढक के समान जीवन जिया होगा, आप अपने दायरे में से बाहर आ जाए, परमेश्वर आपके लिए बड़ी योजना रखी हुई है। Thank you, Lord. Hallelujah. Lift a hand for the blessing of God. हाथ उठाकर परमेश्वर से आशीष Thank you, मांगेंगे। Jesus. Thank Come you, on, Lord. thank God for He brought you to the house of God. परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर आपको परमेश्वर के भवन में लेकर के आया। And thank God, everyone listening, that you could hear the word of God. और धन्यवाद करें जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को प्राप्त कर रहे हैं। Amen. Now may the Lord bless you. May the Lord keep you. Thank you. May His light shine upon you. May He be with you, beside you, before you, behind you, support you, giving you the heart of the Father, like our Heavenly Father, to love, to bless, to counsel, to give, to care, and to help everyone, irrespective of language, creed, color, region, borders. Be a blessing to everyone that you come across or anyone come across your life. Now may the grace of our Lord and Savior, Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, the sweet communion of the Holy Spirit of God be with us till Jesus return or we return victoriously fulfilling the will of God. And all God's children say, Amen.